Welcome to the Amrit book reading session. And so far, it has been really wonderful to connect with you, share Guruji's knowledge. Whatever I have heard, this is my really fortune, I must say, that I got to hear Guruji very closely on multiple occasions while he was advising other people, counseling other people, explaining deepest of philosophy in his sessions. So I don't know where I happened to absorb his teachings, his knowledge so deeply within me. So now it just feels like I read his letters and I know exactly what he is trying to say. So I am attempting this huge task of explaining his philosophy to all of you. And I hope if I go wrong somewhere, you will pardon me, thinking that I'm also still learning. So do pardon me if I make any mistake in explaining or cause any confusion in your mind. So here we begin with the third sub chapter in first chapter called Purpose of Life. In Purpose of Life, Guruji reminded us to take a look at our life and have a very clear idea where we are going, and especially about the inner happiness, because at times in world we go around wearing so many masks that it become difficult to really know what we exactly want and how much we are hiding within us. So a moment with yourself, a sincere thought with yourself is important once in a while, to know whether all is well inside. You are happy, you are contented, you are fulfilled. If not, then you have to do something to bring it. If you are already happy and contented, then you have to contribute to bring happiness in others' life. That is exactly what he was trying to tell us. But when it comes to pain, according to him, largely the pain comes from three factors. Apart from the karmic part, that's completely a different chapter. But the self-created pain, the pain that we happen to misinterpret or happen to mishandle, mistackle, and increase it multifold. So first, we understood how relationships work in our life. Relationship play a major role. All relationships are karmic. They are bound to your good karma, your bad karmas, your neutral karmas. They are completely karma based. Since this is a whole big drama played on planet Earth, so we are all very seasoned, very good actor, doing our role to the but in the whole business, we somewhere forget that this is drama, and then the drama gets on us. And that is where the pain starts. If you can keep reminding yourself, especially when you are suffering, that I should not be getting emotionally so tangled in minute things that are happening due to people around me, you will be able to save yourself from whole lot of pain. And of course, use of spiritual tools. Nobody says, even if you have made some mistakes in past and that's why this karmic pain has come in your life, doesn't make it mandatory for you to suffer. That's the whole beauty of this drama. No, God wants you to suffer. In fact, God wants us to learn quickly and get over the lesson. Whatever mistakes have happened, understand, know, rectify, and just move on. Who doesn't make mistakes? This is very famous line by Paramahansa Yogananda. All sinners have passed. All yogis have been sinners in their past. So nobody has started from very enlightened state. Everybody has reached that state through learning, through falling, through getting up. So this is how we are. So don't get into unnecessarily guilt, frustration, anger, or hold these too many emotions inside you. Just let them go time and again. Remind yourself, I'm playing a drama. Let me play my role well, and others are also playing their role very well. Handle the pain with spiritual tools like forgiveness, like intense soul communication. You all have been taught beautiful tools by Guruji or by teachers like me. Make use of them. This is why we teach all these tools. Not necessarily when you learn, you might be like looking out for
this type of handling. But if need be in future, you must remember that you have learned everything that is required to handle life. So relationships will remain till our last breath. You can't escape, you can't run away from all the relationships. There will be couple of people around you, and you have to learn to deal with their individual nature, their ways of behavior or actions or speech or patterns. All that you have to handle in a more matured way. Yes, I always used to complain to Guruji, being mature comes with a price. He said, of course, don't we saints handle such a ignorant lot around us patiently, lovingly. So at your level also you have to handle things with as much patience and love as you can, because as you start going up the ladder in spiritual progress, the first sign of spiritual progress is to be understanding of ignorant people around you. And instead of getting upset over them, try and be very loving and understanding of them. So relationships we learn to handle. Second, address this situation part that we face in our life. They say there is nothing like coincidence in our life. Everything is pre-planned, meaning what will happen in your life. But one thing which is not planned is, so whole lot of things are in your hand. You can handle the situation with balance, with understanding, or you can just tangled in emotion and make a mess of it. Emotions, you have to be careful. They are powerful. They can be our weakness. They are human as well. So we can't really be free of emotions, but we have to learn to handle them in a better way, in a more mature way. But last that he has suggested, what can bring pain is we ourselves. Our own personality, our thinking patterns, our sanskaras, our habits, they also can bring a lot of pain in our life. Most of the life we fight to change everybody else around us. In fact, it's such a simple thing. You just have to change only one person and things will change for you. And that one person is you yourself. Whoever has understood this can overcome the pain in few months, because that is how the changes in you start being visible in your life. So yourself is today's the topic. This is what Guruji has to say. After that, then I will try and elaborate as much to my capacity and understanding. What I love so much about being human are the grand delusions we have about us. Every individual would like to believe he or she is nearly flawless. Everyone around us simply has too many flaws, too many blemishes that need our immediate attention, involvement and suitable correction. So यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि दुनिया में हम लोग, सभी लोग जो इग्नोरेंस में जीते, जो एनलाइटेड नहीं है, कहीं सारा जो प्रॉब्लम है वो औरों की वजह से है, और उनके दोष हमें बहुत बढ़ चढ़ के दिखते हैं. एक भी दोष दूसरों का छिपता नहीं है. जहाँ पे हम खुद की तरफ बहुत कंपैशनेटली देखते हैं और सोचते हैं कि नहीं, मुझ में इतना प्रॉब्लम नहीं, आई एम क्वाइट फ्लॉलेस, क्वाइट डबल अंडरलाइन, बिकॉज वी डोंट वांट टू एडमिट दैट देयर आर सर्टेन फ्लॉज. लेकिन अभी वो माने कैसे? तो हम बोलते हैं कि नो, आई एम बेटर देन अदर्स, I am quite okay, I am not like this, I am not like her, I am not like him. So we try to get away and avoid looking at us with a very third party view. We avoid, we are very scared inside us. So this is how we try to behave. We try to find flaws with others, and whole life we change them and forget that
If you change, things are going to change. And it's so simple also. How can one human change thousands of people around? Isn't it easy to change yourself and put an end to all the sufferings? Next paragraph he is saying, and so we go about trying to change the people around us with zero rate of success. And I admit to that, I also have tried. I'm sure each one of us have tried changing our husbands, changing our kids, changing our friends, piling up with all the advice and doing every bit under the roof to change. Especially women, I tell you, before, okay, I can always change him later on, which we fail miserably, but we all have notion, or husbands also sometimes think, don't worry, if she is like this just now, we all will change. In fact, the entire in-law family wants to change the bahu to suit their family. So the funny part is, everybody is trying to change the other person without really trying to look into their guard, look inside and think that they need to change. The only person you can change for the better is you, yourself, and no one else. Stop wasting your time on changing people, on advising people, on sermoning people, on fighting with them to change, pleading, begging. We go to any extent to change them, but in vain. कुछ हाथ नहीं आता है. हम लोग हर भरसक कोशिश कर लेते हैं, जितना भी हम कर सकते हैं, रोते पीटते झगड़ते हैं दूसरों को बदलने के लिए. लेकिन एक सिंपल सी बात, अगर इतनी मेहनत खुद के ऊपर कर ली होती तो क्या कहने, अब तक तो हम एनलाइटन बैठे रहते. Doesn't matter, it's never too late. You can start from this very moment and start rectifying wherever you see your own flaws. Since there are billions of individuals on this planet, I cannot possibly cover every area of change a person could bring about for themselves. यहाँ पे गुरुजी थोड़ा अपनी लिमिटेशन बता रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब अलग अलग नमूने हैं. थोड़ी बातें हम लोगों में कॉमन है. वी आर सेम बट वी आर डिफरेंट एट द सेम टाइम. हम लोग एक जैसे भी हैं और अलग अलग भी है. इसीलिए गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं कोई एक उपाय सबके लिए नहीं दे सकता, वो लिमिटेशन है. लेकिन वो कोशिश जरूर करना चाह रहे हैं कि कम से कम हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो इसमें से डेवलप कर लें, क्योंकि वन थिंग कैन नॉट फिट ऑल. हर एक के लिए एक सोल्यूशन. Hence, I will write about 4 major areas of concern that are common to most people. यहाँ पे उन्होंने 4 ऐसे चीजें इंसान की पर्सनालिटी में देखी है, अगर वही चेंज हो जाए तो काफी हद तक चीजें ठीक हो सकती है. और हम तो इन 4 चीजों की हम आज बात करेंगे. However, for those who have some spiritual aspirations or are keen to come out of self-delusion and grow into a better human beings, these will be very relevant. गुरुजी बोल रहे हैं ये जो उनका उपदेश है वो हर एक के लिए है. जरूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हो. हर वो इंसान जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है, खुद को और अच्छा वर्जन बनाना चाहता है, ये उसके लिए उनके लिए भी ये उतना ही लागू है. तो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट के लिए तो बिल्कुल ही, क्योंकि पूरा हमारा उद्देश्य ये है कि अपने को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें एज अ ह्यूमन बीइंग. एक इंसान के बतौर हम कितना, अनफॉर्चुनेटली हम इंसान नहीं है अभी भी, हम मनुष्य प्राणी ही हैं. हमारे अंदर का प्राणी अभी भी काफी हावी हो जाता है. मनुष्य बनने है, भगवान बनने दूर है, हम इंसान ही बन ले तो भी बहुत है. पहली जो चीज गुरुजी हमें बताना चाहते हैं, ही कॉल्स इट प्राइमरी कंसर्न. कहते हैं ये पहली चीज है जिसकी आपको दखल लेना बहुत जरूरी. रिपीटेटिव एंड साउंडिंग एज इफ कि वही बात दोहरा रहे हैं. ऑफ प्राइमरी कंसर्न इज दैट वन क्वेश्चन,
डू यू स्टिल इंटेंशनली हर्ट, हार्म और टू अनदर ह्यूमन बीइंग? कहते हैं कि शायद मैं वही बात दोहराता हुआ लग रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन पहली जो चीज हमें ध्यान में रखनी, क्या अभी भी हम लोग जानबूझ के किसी दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको दर्द देने के लिए अभी भी हम क्या कहते हैं, कोशिश करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं? तो ये sorry for the little interruption. Hope all of you can hear me. So अगर यही चीज नहीं बदली तो पहले इसी चीज को बदलना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो कहते हैं प्रेशर है कि हम इच्छा हो जाती है दूसरों को हर्ट हार्म करने की, तो पहला कंसर्न तो यही है. You don't have to be a serial killer or suicide bomber to qualify. All too often and without much thought, we hurt many of people closest to us and whom we claim to love. कितनी सच बात बोली है गुरुजी ने. हमें कोई सीरियल किलर या सुइसाइड बॉम्बर होने की जरूरत नहीं दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए. इनफैक्ट एक साधारण इंसान अपने आसपास के अपने प्यार करने वाले लोगों पे ही इतना जुल्म ढा सकता है, इतना खरी खोटी सुना सकता है, जिनको कि वो क्लेम करता है कि वो प्यार करता है. इनफैक्ट कई लोगों को तो मैंने सुना है, मैं प्यार करता हूँ ना तो मेरा हक है, अगर मुझे गुस्सा आया तो मुझे गुस्सा करने का हक है या तुम्हें दुख देने का हक है. कितनी गलत बात है. वी हर्ट मेनी ऑफ पीपल क्लोजेस्ट टू अस मोस्ट ऑफ द टाइम. बहुत बार हम अपने आसपास के हमारे करीबी लोगों को ही हर्ट कर जाते हैं यहाँ पे. और इसकी एक ही वजह है, रेजर शार्प टंग. हमारी जो ये जुबान है वो इतनी तेज है, इतनी जहरीली हो सकती है कि उसको फिजिकली किसी को मारने की जरूरत नहीं है. 4 शब्द ऐसे बोल दो तो भी बेचारा वहीं मर जाए, वहीं ढेर हो जाए. तो जब तक हमारी जुबान के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं आता है तब तक हम दूसरों को बिना सोचे समझे हर्ट करने की पूरी क्षमता रखते हैं. पूरा हम कहते पॉसिबिलिटी है. ट्राई टू पुट एन एंड टू दिस. गुरुजी हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर एक चीज जो हम सबको बदलनी चाहिए तो वो ये चीज कि मेरी जुबान से मैं किसी को जानबूझ के उल्टा सीधा जो लगता है दिल पे वो नहीं बोलूंगा. मैं अपने वचन से किसी को हर्ट नहीं करूंगा. बिकॉज यू विल सीरियसली इम्पेयर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. अगर आप अभी भी ऐसे ही बिहेवियर रखते हैं, ऐसे ही आपका स्वभाव है और ऐसे ही आपका व्यवहार रहा, तो आप आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भूल ही जाइए. क्योंकि इस दौरान इतने सारे नेगेटिव कर्मा घट जाते हैं कि उसका भार आपके कंधों पे आ जाएगा. फिर आप कितना भी मेडिटेशन करो, कितना भी जप जाप करो, कितना भी कुछ करो, अगर ये चीज नहीं बदली तो आपके कर्मों का जो हिसाब किताब है वो कभी शांति नहीं होगा. उसमें एडिशन के ऊपर एडिशन, एडिशन के ऊपर एडिशन होता रहेगा. बहुत बार क्या होता है, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं. वो कहाँ जाएंगे? मेरे गुस्से को नहीं झेलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए हम बिना सोचे समझे गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि वो मजबूर है, उनको हमारे साथ रहना पड़ता है ना. वो नहीं छोड़ के जा सकते फॉर वॉट एवर रीजन, किसी भी वजह से हो. या फिर सच में हमसे प्यार करते कि हमें झेल रहे हैं, और हम हैं कि अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते और 4 तीखे बोल के ही हमारा गुस्सा शांत हो जाता है. कई बार तो ऐसा भी होता है, स्पेशली माओं के बारे में, किसी का गुस्सा किसी पे निकलता है, स्पेशली बच्चों के ऊपर. किसी और की झल्लाहट कहीं और निकल जाती है. मर्दों का होता है ऑफिस की झल्लाहट वाइफ पे निकालो, फिर वाइफ अपनी झल्लाहट बच्चों पे निकाले, फिर बच्चे भी जाके अपने दोस्तों पे निकाले. बीच में कहीं बहुत साल पहले मैंने ये वीडियो देखा था कि व्हाट आर यू फॉरवर्डिंग, यही घूम रहा है. फॉरवर्ड स्माइल इफ यू कैन rather than anger, because that anger will get passed on further and further and it will come back to you at some point. That is how things work. ऐसे ही काम चलता है. जो आप बाहर भेजते हो वहीं कहीं से आके आपको हर्ट कर सकता है. सो पहली चीज, अगर किसी को अपने में बदलाव लानी है तो अपनी जुबान पे कंट्रोल, अपनी वाणी पे कंट्रोल, अपने गुस्से पे कंट्रोल, क्योंकि यही से सारा
दुख या तनाव या तो में the higher you reach, the more frustrating is this weight around your ankle. अगर आप ऐसे ही बिहेवियर करते रहे और स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस होना चाहते हैं तो ये जैसे एक वजन बन जाता है आपके पैरों में बंधा हुआ और आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, आप नहीं जा सकते और ऊपर, क्योंकि इस चीज से उत्पन्न कर नीचे ही रखेगा, आपको नीचे फंसा के रखेगा. टू माई माइंड the three foremost reasons why we land up intentionally hurting people are, ये 3 कारण गुरुजी बता रहे हैं जिससे हम ना खुद को रोक नहीं पाते दूसरों को हर्टफुल बोलने से, दूसरों को जली कटी सुनाने से. पहली चीज है अनकंट्रोल्ड एंगर, ऐसा गुस्सा जिसके ऊपर आप काबू नहीं कर सकते और फिर गुस्से में आप जो बोलते हैं वो खराब ही बोलते हैं. फिर चाहे आप कितनी भी बाद में माफी मांग लो, एक बार जुबान से एक शब्द निकल गया, उसने अपना काम कर दिया है, उसने दूसरों को घायल कर दिया है. फिर आप कितना भी मीठा बोलो, कितना भी आप कोशिश करो, वो भरने में टाइम लगता है और उसके ऊपर आपका स्वभाव ऐसे बना रहा तो बार बार आप हर्ट करोगे. उस व्यक्ति का आपके सॉरी से विश्वास उठ जाएगा. कितनी बार तो ऐसा हो जाता है, ये भी मैंने कहीं सुना, फॉरवर्ड्स आते रहते हैं कि दिस ईयर आई विल टेक ओनली चेंज इन योर पर्सनालिटी, नो अपोलॉजीज प्लीज. लोग थक गए हैं माफिया सुन सुन के, लेकिन उस इंसान का वो माफी कोई मायने नहीं रखती, कोई भी मायने नहीं रखती. इट्स सच अ शैबी वर्ड टू थ्रो ऑन समबडी, सॉरी सॉरी सॉरी, एंड गेट अवे विथ वॉट एवर यू हैव डन एंड रिपीट इट अगेन. सो गुस्से पे काबू पाना ये बहुत जरूरी है और उसी से फिर जबान पे काबू आएगा और आप दूसरों को हर्ट करने से खुद को रोक दोगे. वैसे गुस्सा दिखाने का या बात बताने का तरीका भी होता है. थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लो, शुगर कोट करो, थोड़ा शांति से बात करो, थोड़ा पीच डाउन करके बात करो. हर्टफुल वर्ड चूज करने से अच्छा है कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में, आपका गुस्सा जायज हो सकता है कभी कभी, मैं ये नहीं बोल रही कि गुस्सा जायज नहीं होता है, लेकिन फिर भी गुस्से में कभी कभी हदें पार हो जाती है. शुरुआत किसी चीज से हो जाती है और माँ बाप खानदान तक निकल आते जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है. तो अनकंट्रोल एंगर इज अ वेरी बिग रीजन ऑफ गेटिंग, ना कहते हैं उकसा देता है, ये गुस्सा उकसाता है कि हम दूसरों को दे. दूसरी चीज है जिससे हम दूसरों को इंटेंशनली हर्ट हार्म करने के ना हम करने से चूकते नहीं या फिर बाज नहीं आते या फिर वी हार्डली केयर कि हम दूसरों को हमारे एक्शन से हर्ट कर रहे हैं कि नहीं. वो है अनब्राइडल्ड ग्रीड. ग्रीड यानी लोभ. आजकल दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है आप देख सकते हैं, लोभ ही लोभ है. फिर लोभ में कोई नहीं सोचता है कि मेरे इस कार्य से दूसरे के ऊपर क्या परिणाम होगा. इमेजिन पीपल adultering milk which babies drink, adultering everything that somebody else is going to consume and may get hurt. कोई बीमारी आ सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, किसका जिम्मा है ये. तो ऐसी जो एक लोभ के मारे जो लोग रहते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं. ब्राइबरी है, करप्शन है, हर एक के पीछे लोभ ही लोभ तो है. तो इस लोभ में आकर आप ये नहीं सोचते कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ या इससे किसी को नुकसान हो सकता है. आप इनफैक्ट आपको मालूम होता है इससे नुकसान होगा, फिर भी आप वो कर देते हैं क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको पोस्ट चाहिए, आपको पोजीशन चाहिए, आपको कुछ ना कुछ चाहिए जिसका लोभ आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो जितना गुस्सा कर्मा बढ़ा देता है उससे कहीं ज्यादा लोभ आपसे गलत सलत करवाएगा. फिर फ्रॉड्स होते हैं, स्विंडिंग होता है, कितनी सारी गलत एक्टिविटीज हो जाती है और कोई ना कोई हर्ट हो जाता है. कोई इंसान खुशी खुशी ब्राइब नहीं देता है. मेनी टाइम्स आर्म ट्विस्ट हो जाते गरीब लोग भी और उनके दिल से जो आह निकलती है वो कुछ तो काम करेगी, कुछ तो कहीं में ना कहीं आके हमें वापस लगेगी. सो ध्यान रखिए आपके ग्रीड की तरफ कि ग्रीड में आप किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं. और तीसरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनवारंटेड एरोगेंस एटीट्यूड.
अभी इट्स योर थिंग, लाइक यू हैव टू स्पीक लाइक दैट, वेर लाइक ना यू आर just slapping people while you are walking or commenting on them, treating them shabbily because you feel you are like God's gift to humanity. कितने लोग हैं जो अनवांटेड एडवाइस दे देते हैं? अरे जुबान बंद रखो यार। किसी का वजन बढ़ा है, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है, उसको ये पता है, उसको भी पता है उसका वजन बढ़ा हुआ है। आप क्यों जाके उसकी दुखती रग पे हाथ रख दे? शायद वजन बढ़ा है ना तुम्हारा, थोड़ी हेल्दी लग रही हो। अरे क्यों दुबली हो गई हो? शादी कब है, ये कब है? अरे किसने बोला है? दिस इज वो टाइप ऑफ एरोगेंस। आप अपने काम से काम रखो ना। अगर बोलना है अच्छा बोलो, नहीं तो स्माइल करो, चुप रहो। लेकिन वो नहीं होता है ना, कंपल्शन है, बोलना ही है ना। तो एरोगेंस ऐसी चीज है जो आपसे गलत सलत बोल देगी। ऐसे तीखे शब्द आप बोलोगे अपने लव्ड वंस को जो आपकी केयर करते हैं, कि उनको तोड़ के रख देंगे, उनको रुला के रख देंगे और आपको खुशी होती है। ये क्या है? ये क्या है? आप अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रख सकते। भी समझा सकते हो, लेकिन अंदर का कड़वाहट, अंदर का जहर आ जाता है। और एरोगेंस में भी हम बहुत दिल दुखा देते हैं, बहुत ज्यादा। ये एटीट्यूड जो है, ये ना उकसाता है कि हम दूसरों को नीचा दिखाए, या किसी को रैग करे, किसी को बुली करे, किसी को टॉन्ट करे। इन सब से कहीं ना कहीं आपके खाते में लिखा जा रहा है कि आपने जितना पेन दिया है, आपको उतना पेन वापस लेना पड़ेगा। यहाँ पे हिसाब किताब बहुत पक्का रहता है भाई, बहुत पक्का। एक भी चीज नहीं चूकती, एक भी नहीं। और आप ये भी नहीं कर सकते, विटनेस नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा खुद विटनेस है और खुद रिकॉर्ड कर रही है। तो हम कहीं जा नहीं सकते कि ये मैंने नहीं थोड़ी कहा था, ये मैंने नहीं किया था। तो इस तरह से ये तीन अनकंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड एटीट्यूड यानी एरोगेंस, तो जो है ईगो वाली बात है, इसमें भी आप बहुत लोगों को हर्ट कर सकते हैं। अगर शुरुआत आज से मेरी वाणी से नहीं होगा, इंटेंशनली नहीं जानता, कभी कभी अनजाने में हर्ट हो जाता है, लेकिन वो अनजाने में हुआ था। लेकिन यहाँ पे भी आपके मन को बहुत परखना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी कभी इसके पीछे छुप जाता है। दिखावा करने में माहिर है, अंदर छुपा हुआ मोटिव वो बाहर दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको पता रहेगा। तो अपने इरादे क्या है वो आपको जानना जरूरी है। बोलने से पहले या करने से पहले 100 बार आपको ना चेक करना पड़ेगा कि मुझे बोल के चाहता हूँ ऐसे, या मैं क्यों ऐसे मिलता है उसको दुख देके। अगर मिलता है दैट मीन्स यू आर ट्रेडिंग ऑन टाइम। लेकिन डिसिप्लिन के लिए किसी को ना स्पष्ट रूप से कुछ बातें समझानी पड़ती है, लेकिन वहां पे भी आप थोड़ी माइल्डर लैंग्वेज, थोड़ा बेटर कम्युनिकेशन स्किल अपना सकते हैं। ओवरकमिंग एंगर वुड नीड अ पर्सनालिटी चेंज और एटीट्यूडनल हीलिंग। ये गुस्सा छोड़ दो बोलना जितना आसान है, उतना वो आसान है नहीं। इसीलिए तदेकम की तरफ से हम काफी सारे सेशंस लेते हैं जहाँ पे हीलिंग सिखाते हैं। बेसिकली गुस्सा आता कहाँ से है? जैसे जैसे हम अनुभव लेते जाते हैं, अंदर कड़वाहट भरती जाती है, अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है, वैसे गुस्सा बढ़ता जाता है एज की तरह। छोटे बच्चे को जब तक सब कुछ मिल रहा है वो गुस्सा नहीं आता, उसको नहीं मिलना शुरू हो जाता है तो उसको गुस्सा आने लगता है। फिर उसके बाद लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और मन के जैसा नहीं होता है तो गुस्सा बढ़ता ही जाता है। और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है हम ज्यादा बिगड़े बच्चे बन जाते हैं। तो हीलिंग जरूरी है, यानी अंदर जो भी घाव है वो ठीक होना जरूरी है। जब तक वो घाव अंदर जीवित है आपकी पर्सनालिटी नहीं बदलेगी, आप कितना भी कोशिश कर लो। तो अभी तो लॉकडाउन है, मैं भी हेल्पलेस हूँ। नहीं तो जब लॉकडाउन खत्म होगा, अगर आप में से किसी ने ये कोर्सेस नहीं किए हैं तो आई रिकमेंड देम हाईली
क्योंकि ये मैंने खुद ने अनुभव लिया है कि हीलिंग से कितना फर्क पड़ता है। सारे पुराने जख्म जब धुल जाते हैं, आप एक नए इंसान की तरह जन्म लेते हो, क्योंकि पिछला कुछ भी आपको अफेक्ट नहीं होता। आपकी पर्सनालिटी क्लीन हो जाती है, बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा जब जब तक उसमें कोई इमोशंस नहीं थे वैसी प्योर वाली बन जाती है। तो अभी के लिए तो इतने, बट जिन्होंने ये हीलिंग टेक्निक सीखे हैं तदेकम से, आप प्लीज हीलिंग पे ध्यान दीजिए। जब तक हमारा स्वभाव नहीं बदलता तब तक कितनी भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लो, उसका कोई क्या कहते हैं, पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वापस वापस नीचे आके ही रुक जाएंगे। तो हीलिंग बहुत जरूरी है एंगर के लिए। यू कैन ओवरकम ग्रीड बाय नोइंग इन योर हार्ट that no matter what you do, you will never have more than what is potentially in your blueprint or destiny. यहाँ पे लोभ के लिए गुरुजी एक एडवाइस दे रहे हैं कि लोभ को छोड़ना गुस्से को छोड़ने से थोड़ा इजी है। अगर आप एक बात जान लो, और शायद आपने कभी अनुभव भी किया होगा, कि आपके हिस्से से ज्यादा या आपके हिस्से से कम आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि मेरे पास कम है तो वो भी गलत है, और आपको लग रहा है कि दूसरों का लेके मेरे पास ज्यादा आ जाएगा तो वो भी गलत है। लाइफ आज नहीं, शायद 10 साल बाद लाइफ अपना कहते डंडा उठाएगी, और जितना आपने ज्यादा लिया था उससे चौगुना आपसे वसूल करेगी। तो लेजिटिमेट तरीके से अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और एक्वायर करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन लोभ के मारे दूसरे का छीन के, लूट के, धोखा दे के, या कोई करप्शन करके, या गड़बड़ी करके अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप गुरुजी बहुत बार हंस के बोलते कि इंसान अपने एरोगेंस में ये भूल जाता है कि वो इतना सा दिमाग रखता है, लिटरली इतना सा, और यूनिवर्स जो है, जो उसका दिमाग आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है। हम उसको उल्लू बनाना चाहते हैं क्या? हमारे सारे इंसानों के दिमाग एक करके भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती, यानी 600 समझ। सॉरी, इट गॉट डिस्कनेक्टेड, आई एम बैक अगेन। सो को उतना ही मिलेगा जितना आपके नसीब में है, लेकिन कोशिश करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कितना है। सो कोशिश जारी रहे, लेजिटिमेटली, मेहनत से, और आपके जितना मैगजीन में वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये भी आप ध्यान रखो। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आसपास के लोग कम मेहनत से चापलूसी करके आगे जाते दिखाई देते हैं, और हमारा मन इतना सा हो जाता है कि मैं अपनी मेहनत से भी आगे नहीं जा पा रहा हूँ। ये लोग, लेकिन वो शॉर्ट टर्म गेन है। आप मेहनत जारी रखो, जितना आपसे बन पड़ता है आप करो, आपकी मेहनत का कोई नहीं छीन सकता, वो आपको मिलके ही रहेगा। तीसरी चीज जो है एरोगेंस, अब उसको भी आपको थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। सो regardless of how much you scheme, plot, plan, steal, loot or cheat, the universe will ultimately balance your account by taking away something from your life you hold dear. यहाँ पे हिसाब कभी कभी पैसे में नहीं होता है, कभी कभी ऐसी चीज भगवान छीन लेता है कि आप सोचते रह जाओगे कि पैसे नहीं चाहिए थे मुझे इतने। तो भगवान अपना अपना तरीका होता है उसका सेटल करने का स्कोर। तो उसकी लाठी में कहते हैं ना, आवाज नहीं होती है, देर हो सकती है लेकिन आवाज नहीं होती है, वह जब पड़ती है ना तब आग निकलती है। तो गलत काम का नतीजा गलत होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इट मे नॉट बी नेसेसरी द मटेरियल वेल्थ, आपसे जब छीना जाएगा तो आपका मटेरियल वेल्थ नहीं, कभी कभी कोई रिश्ते को खोना, किसी इंसान को खोना भी एक पे बैक जैसा यूनिवर्स से आ सकता है। इन एनी केस यू विल इवेंचुअली एंड अप विथ नेगेटिव कार्मिक डेट। इतना होके भी आपके खाते में नेगेटिव आएगा ही आएगा। आप कितना भी फ्रॉड कर लो, आज आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कल उसका जो नतीजा है वो शायद पैलेटेबल नहीं हो सकता है। सो जैसे आपको गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना है, आपकी अनब्राइडल्ड ग्रीड को भी कंट्रोल करना सीखना है, जहां पे वो आपको उकसाती है गलत तरीके से पाने के लिए।
लेजिटिमेट तरीके से मेहनत से आप जरूर पाइए, वो आपका हक है। दूसरी चीज जो गुरुजी बताना चाहते हैं, तो प्राइमरी कंसर्न यानी प्राथमिक जो चीजें हैं बदलाव वाली, वो है आपके एटीट्यूड में बदलाव, आपके गुस्से पे काबू और आपके ग्रीड पे काबू। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द स्टेल्थ बॉम्बर। ये एक छुपा हुआ दुश्मन है। स्टेल्थ बॉम्बर आपको पता होगा कैसे काम करता है। वो दिखता नहीं है रडार पे, वो जब अटैक करता है वो तभी समझ में आता है कि अरे बाप रे, ये तो हमला हो गया। वैसे ही ये इमोशन जो है वो दिखता नहीं, वो ऐसे लगता है कि है ही नहीं, लेकिन वो जब उभर के आता है और उसके द्वारा पूरा सत्यानाश हो जाता है, तब जाके हमें समझ में आता है कि अरे बाप रे क्या हो गया। इसीलिए गुरुजी ने उसको स्टेल्थ बॉम्बर यानी छुपा हुआ दुश्मन नाम दिया है। I like to call this particular emotion the stealth bomber because that's exactly how it functions. The operative word is jealousy, यानी मत्सर यानी ईर्ष्या। Another grand delusion most of us live in is that there is not a jealous bone in our body. यहाँ पे भी गुरुजी का अनुभव है कि बहुत लोगों को ये एक्सेप्ट करने में तकलीफ होती है, एक्सेप्ट नहीं होता है कि उनको जेलसी फील होती है। फनीली आई हैव येट टू कम अक्रॉस अ पर्सन हु हैज नेवर फेल्ट जेलस। और जब गुरु देखता है हमें, वो पूरा स्कैन हो जाते हैं हम लोग। फिर हम बाहर से कितना भी दिखावा करें, कम से कम गुरु के सामने तो ना करो। जिसके गुरु बाबा जी हर एक थॉट को पकड़ते हैं, उनका शिष्य वो भी इतना तो जानता ही होगा कि हमारे अंतरंग में क्या है। तो जब अपने गुरु के पास जाओ ना, तो कुछ छिपाने की जरूरत है। इनफैक्ट मेरा तो ये कहना है कि आप आपके फ्लॉज ही लेके जाओ, उनको भी बताने की या दिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही जाके ना बताओ कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, आप बताओ मैं किस तरह से हैंडल करूँ। तो गुरुजी का ये अनुभव है कि बहुत लोग आते हैं, मास्क पहन के आते हैं और ना उनको पता ही नहीं रहता कि ये दुश्मन अंदर पाला हुआ है। Believe me, I have known of very spiritually elevated souls succumbing to this stealth bomber. As a warning, he is telling us, don't take this lightly. आप चाहे कितने भी हो, ये एक कमजोरी आपको धम से नीचे लेके आ सकती है। आपकी जेलसी आपके अंदर की सारी बुराई बाहर निकाल के ला सकती है। सो इससे केयरफुल रहना, इसके ऊपर नजर रहने देना। कुछ कुछ तो इमीडिएटली अटेंशन आना चाहिए। नाउ द रीजन आई कॉल इट द स्टेल्थ बॉम्ब, live in complete denial that this emotion, this means it appears quietly, undetected by your radar and you have no defense against it. Then it wreaks havoc with some saturation bombing that leaves in complete turmoil and your heart in tatters. So ये जब जेलसी बहुत बढ़ जाती है, ये क्योंकि ये गुस्से के रूप में आ सकती है, ये डिसलाइक के रूप में आ सकती है, ये ना जजमेंट के रूप में आ सकती है, ये बहुत छुप के आती है। और जब तक ये पता चले तब तक बहुत सारा कुछ गड़बड़ हो चुका रहता है। Not only does it destroy you, but at times forces you to act in a total uncharacteristic, resulting in unnecessary complications in your life you could have easily avoided. जेलसी में इंसान इतने नीचे गिर सकता है, और ये मैंने पर्सनली देखा है, मेरे साथ होते हुए देखा है। उस दौरान मैं रोती थी गुरुजी के सामने, कहते तू बुरी नहीं है, तेरे से जेलस है लोग, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहे तेरे साथ, तेरा कोई दोष नहीं है। गुरु का होना ये इतना जरूरी है चीजें समझने के लिए। और मैं सोचती थी कि ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे पीठ पीछे इतनी मेरे बारे में बुरी बुरी बातें क्यों फैला रहे हैं। जो भी शायद एक वीडियो है गुरुजी का, आपको अगर टाइम मिले तो आप यूट्यूब पे जाके जरूर इसको देखिए कि जेलसी किस तरह से हमें कैरेक्टर असैसिनेशन करवाने पे उकसाती, क्योंकि वो व्यक्ति में अच्छा नहीं लगता ना, तो उसकी बुरियां जमाने में उसका नाम खराब करके कहीं ना दिल को एक
ठंडक मिलती है। और इतना खराब व्यवहार सिर्फ जेलसी करा सकती है। गुरुजी बोलते हैं एक बार गुस्सा जायज है, क्योंकि किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है तो गुस्सा जायज है कहीं ना कहीं आपका, आपकी जेलसी जायज नहीं है। क्योंकि जब कोई ऊंचा उठ रहा है उससे आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए, उसने आपको तो दुख नहीं दिया है, वो तो अपनी मेहनत से ऊपर उठ रहा है, वो अपनी काबिलियत से सक्सेसफुल हो रहा है, उसने आपको तो कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को अगर जेलसी हो गई, बहुत बार कामयाब लोगों को देख के जेलसी हो जाती है, अपने अपने फील्ड में बेहतर जो है उनसे जेलसी हो जाती है, और फिर लोग वो जेलसी को निकालने के लिए गंदा तरीका अपनाते हैं कि अपने पीठ पीछे उस व्यक्ति की बुराई, हिम्मत है तो सामने करो, क्योंकि झूठ पीठ पीछे ही चलता है। सच को पीठ पीछे करने की जरूरत नहीं, सच आप सामने भी बोल सकते हो, वो व्यक्ति भी गुस्सा भी होगा तो भी कहीं ना कहीं मान लेगा। लेकिन जेलसी है तो कैसे, झूठ है पता है अंदर, लेकिन इसी तरह जेलसी काम करती है, तो इतने गंदे काम करवाती है, आपके मन में उस व्यक्ति के लिए जहर भर देती है बिना कारण। उस व्यक्ति ने सच में कुछ नहीं किया, आप उसको पता भी नहीं है कि आप जले जा रहे हो और आपको अंदर इतना कुछ हो रहा है, उसको वो तो अपने काम में मसरूफ है, वो तो अपनी जीवन में व्यस्त है। सो इस इमोशन के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप जल जल के खाक हो जाओगे या फिर आपसे इतने गंदे काम हो जाएंगे कि कार्मिकली भी आप मेसअप हो जाओगे, नहीं तो आप जलते रहोगे अंदर के अंदर। Possibly the only way one can work at minimizing its devastation is to first acknowledge you are liable to getting attacked by jealousy. यहाँ पे गुरुजी हमें कुछ उपाय बताते हैं इससे बचने के। कहते पहले तो एक चीज मान लेनी चाहिए कि मैं जेलस फील कर सकती हूँ, जैसे सच बोलना है खुद से कि नहीं यार मुझे जेलस फील हो गया, यार उसको प्रमोशन मिल गया, मुझे सच में बहुत बुरा लगा, बहुत जेलस फील हुआ, या यार उस वो कितनी सुंदर लग रही थी, आई फेल्ट सो जेलस कि सारा अटेंशन उसने ले लिया। तो पहले तो ये मान लो कि आपको जेलस फील होता है, या किसी ने किसी की तारीफ कर दी आपके पेट में दुखने लगा, मान लो, हम इंसान ही हैं, इसीलिए तो इंसान के सारे इमोशंस है, उसमें कोई गलत नहीं है। गलत ये है कि उस इमोशन में बह जाना, उसको महसूस करना गलत नहीं है, उस इमोशन को हावी हो देना और फिर गलत कर्म कर बैठना, वो गलत है। जेलसी फील हो, खुद से आप मान लो कि हाँ भाई हो गया, मुझसे जेलस फील हो गया, देन जस्ट एज द फर्स्ट अटैक be aware that this is just one lifetime, there have been and will be many others. आपको कभी भी किसी से जेलस फील हो तो गुरुजी ने एक सिंपल उपाय बताया है कि भाई एक लाइफ टाइम है, कहाँ ये आखिरी है, कुछ अरमान रह गए हैं, पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे एक गाना याद आ रहा है मुझे, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, अपूर्णता इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यहाँ पे किसी की थाली पूरी नहीं होगी, किसी की थाली में कुछ होगा, किसी की थाली में कुछ होगा, क्योंकि वो अपूर्णता इसलिए रखी है इंसान में, तो भगवान को भी अपूर्णता है, इसलिए हम खोजते हैं कि क्यों मेरा लाइफ पूरा नहीं है। इसीलिए आप जेलस फील मत करो, आपके लाइफ में सक्सेस नहीं है, नेम नहीं है, फेम नहीं है, आ जाएगी, आप मेहनत करो, शायद इसी लाइफ में आ जाएगी, नहीं तो अगले लाइफ में आ जाएगी। यहाँ पे कौन सा ये लास्ट लाइफ टाइम है, इसमें जेलसी वाली क्या बात है, शायद आपने पिछले लाइफ में ये एंजॉय कर लिया हो, इसलिए इस जन्म में आपने वो इच्छा ही नहीं रही, इसीलिए आपने वैसा प्रारब्ध लेके जन्म लिया है जहाँ पे दूसरों के लाइफ में जो चीजें हो रही है वो आपके लाइफ पे एनलाइटेंड पर्सपेक्टिव बहुत काम आता है, एक सुलझा हुआ नजरिया वो बहुत काम आता है। Every soul must take all experiences, pleasant and painful, before it can be liberated from the cycle of birth and death. So have peace. कुछ मिस आउट नहीं होगा, किसी को रूप चाहिए रूप मिलेगा, किसी को पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, किसी को नेम चाहिए नेम मिलेगा, फेम चाहिए फेम मिलेगा। यहाँ तक सारे एक्सपीरियंस आपका सोल नहीं लेता, वैसे भी कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली।
छोड़ दो। जितना आप दूसरों के लाइफ की तरफ देख करते हो ना, उतना मन की शांति आपकी बरकरार, और आप ना सेटिस्फैक्शन में जियोगे, आप अपने लाइफ को रिस्क। यहाँ पे हर एक को अपनी लाइफ कम दिखती है, कमियां दूसरों की लाइफ देखने में मग्न है। शायद ऐसे भी कई सोल को देख के हैरान, जैसे मेरी लाइफ क्यों नहीं है। बेसिकली एवरी पर्सन इज जेलस ऑफ समबडी एल्स, रियलाइजिंग कि जो भी दिया है वो आपके भले के लिए, नहीं दिया है तो दिया है। एंड एनीवे, अगर इस लाइफ में कोई एक्सपीरियंस छूट गया तो अगली बार है, यहाँ पे बहुत बार आना है। So hence someone is taking some pleasurable experiences now. Your turn may come later in this or in some future lifetime. तो अभी अगर कोई किसी चीज को एंजॉय कर रहा है तो अभी उसका टाइम आया है, आपका भी आएगा। शायद इसी जीवन में आएगा या शायद अगले बार अगले जीवन में आ सकता है। ट्राई टू सी ईच लाइफ एज वन चैप्टर इन एंडलेस सागा ऑफ योर सोल। इस इतने बड़े ऊपर से आप देखोगे ये सब बहुत ही ट्रिवियल, बहुत ही कहते हैं ना मामूली सा सब ये लगने लगेगा। तो ऊपर उठने की कोशिश करो, ऊपर जितना उतनी ही चीजें साफ नजर आएंगी और उनका महत्व ही कम। So it's not like one last lifetime, rather than one-off event where you must enjoy, achieve, acquire and experience everything to the maximum right now. So आप अपने जीवन की तरफ ध्यान दो, आप इसी जीवन का कितना अच्छा उपयोग कर सकते हो, कितनी अच्छी से आप इसको जी सकते हो, उसके ऊपर फोकस करो। बाकी मटेरियल थिंग्स का तो नसीब से आता है बहुत कुछ, और इम्पॉसिबल नहीं है मिलना, लेकिन दूसरों के प्रति जेलस फील करना छोड़ दो, उनको ब्लेसिंग दो। मे गॉड ब्लेस यू। शायद ये आपके अच्छे कर्म है कि आपको ये नसीब हुआ है, और शायद मेरे अच्छे कर्म को मैं अलग तरह से जी रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। किसी को खूबसूरती चाहिए, लेकिन खूबसूरती के साथ हरासमेंट भी आता है। किसी को बहुत पैसा चाहिए, लेकिन उस पैसे के साथ परेशानी भी आती है। तो गुरुजी बोलते हैं जेलसी को ठीक करने का एक ही उपाय है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जब आपको लगेगा जितना चाहिए उतना भगवान ने दिया हुआ है, तो फिर काहे की जेलसी। नेक्स्ट जो टॉपिक गुरुजी डिस्कस करना चाहते हैं, उनको उन्होंने बोला है क्विक सैंड। क्विक सैंड यानी दलदल, जिसमें हम धंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। दिस क्विक सैंड इज कॉल्ड अटैचमेंट, जो दुख का दूसरा कारण है। सो अभी तक दुख के हमने कारण देखे हैं। पहला तो है हमारी गुस्सा, ग्रीड और एटीट्यूड, जेलसी, और अब ये आया है अटैचमेंट। द क्विक सैंड इज कॉल्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी मोह, आसक्ति। इफ यू आर स्टक with a lot of attachments, there is only one direction for you to go, that is down. Possibly the singular reason why almost all of us get caught in this mess is because we cannot differentiate between love and attachment. ये eternal ना confusion रहेगा। आसक्ति और प्यार में क्या फर्क है? आसक्ति से जो दर्द उत्पन्न होता है, जो दुख उत्पन्न होता है, वो पूरी तरह सेल्फ क्रिएटेड है, नथिंग टू डू विथ योर कर्मा। वैसे ही जेलसी भी जो दुख उत्पन्न होता है, सेल्फ क्रिएटेड है। गुस्से से जो दुख उत्पन्न होता है, सेल्फ क्रिएटेड है। सो बेसिकली गुरुजी यहाँ पे हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें अगर हमने बदल दी तो सेल्फ क्रिएटेड कितना सारा दुख निकल जाएगा। इतने भी बुरे कर्म नहीं किए हैं भाई कि डे टू डे रोज के रोज दुख आए हमारे जीवन में। रोज के रोज दुख आता है इन सारे दुर्गुणों की वजह से। इनको निकाल दो, शांति शांति है। कर्मों का हिसाब तो चलता रहेगा, लेकिन खुद उसमें और ज्यादा बस इतना भी कर दें तो भी हम लोग काफी
ना संतुलित काफी अच्छा जीवन सकते हैं। अटैचमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे गुरुजी ने ये बोला है कि प्यार और अटैचमेंट में बहुत फर्क है। तो क्या क्या फर्क है, जितना भी मैंने है, बेसिकली ये फर्क है। जब आप अटैचमेंट में रहते हो, आप खुद के बारे में ज्यादा सोचते हो। मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगा, वो नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, वो है इसलिए मैं खुश हूं। बेसिकली why you want, are getting something out of it, और उसी को आसक्ति बोलते हैं। आसक्ति में एक्चुअली सबसे ज्यादा आसक्ति तो हम में अपने आप से है। को खुश रखने के लिए हम लड़के हमारे आसपास रखते हैं क्योंकि उनसे हमें अच्छा लगता है, उनका रोल है। दे आर मियर टॉयज, हमारे लिए उतनी ही वैल्यू है उनकी, कोई प्यार व्यार नहीं है, क्योंकि दे फुल, उनकी मदद हो जाती है, उनसे कुछ मिल जाता है, कोई ना कोई स्वार्थ है। इस प्यार में हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और बिना रिटर्न की अपेक्षा के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंसान प्यार करता है वो बस करता ही जाता है। यहाँ ना एक माँ के पास आ सकते हो, लेकिन माँ भी बहुत अटैच, ना थोड़ा कंफ्यूजन वहां पे और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो सेल्फलेसली बहुत ज्यादा कर सकती है, तो थोड़ा क्वालिटी बेहतर होती है। लेकिन आसक्ति बहुत होती है माँ की बच्चों में, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट भारतीय माँ के बारे में ना बोलूं तो अच्छा है, मैं भी तो हूं ना। तो आसक्ति तो इतनी हो जाती है कि 50 साल का भी बेटा हो तो भी फोन के ऊपर माँ बोलेगी, बेटा बहू ठीक से खिला रही है कि नहीं। यानी अरे 50 साल का हो गया और शादी को 25 साल हो गए, अभी खिलाएगी, भूखा रखेगी, क्या करना है। वो मोह छूटता नहीं, अभी भी रिमोट कंट्रोल हाथ में चाहिए। तो ये आसक्ति है। आसक्ति में हमें भरोसा नहीं होता है, आसक्ति में कंट्रोल चाहिए। आसक्ति पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, जिसे हम प्यार बोलते हैं वो पॉजिटिव फीलिंग है। ना पॉजिटिवनेस आएगा उससे। प्यार में कभी वीकनेस नहीं होता है, प्यार में कभी पॉजिटिवनेस नहीं होता है। प्यार में बहुत, आप उसको सीखने दे सकते हो खुली आंखों से। कभी कभी उसका दर्द भी देखना पड़ता है, क्योंकि उसी दर्द से वो सीख रहा है। ठहराव होता है प्यार में। आसक्ति में आप जंप करते हो, उसका प्रॉब्लम अपना बना लेते हो। तो आसक्ति बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी अटैचमेंट। वी अज्यूम दे आर सिनोनिम्स, हमें लगता है कि वो एक समान ही है। व्हेन दे आर एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज, वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट की तरह अपोजिट है। लव इज द एनर्जी दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द क्रिएटर एंड इट कैन ओनली ब्रिंग जॉय टू अ पर्सन। अब यहीं पे मैं भगवान का उदाहरण देना चाहूंगी। भगवान ने हमें पैदा किया है, हम उसके बच्चे हैं, लेकिन वो हमें अपने दर्द से सीखने देता है। बीच बीच में नहीं आता है हमारे सीख के, वो देख सकता है कि ये मेरे बच्चे के भले का है, इसलिए मैं शांति से देखूंगा। हाँ, पुकारेगा तो थोड़ी हेल्प करूंगा, लेकिन उसको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये मैच्योरिटी भगवान में ना, अगर वो हम में आ जाए तो हम बोल सकते हैं प्यार है। तो it can only bring joy to a person. On the other hand, attachment is that grand delusion that makes you feel you personally own everybody and everything that you possess in this lifetime. ये एक और डिफरेंस आ गया। आसक्ति में हमें ऐसे लगता है कि वो चीज मेरी है, मेरे हक की है, मेरे मेरी मालकी है उसके ऊपर, मैं मालिक हूँ। और वहीं से सारा गलत खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि इतना सा भी आइडिया हमें नहीं है कि कितना ट्रांजिएंट ये वर्ल्ड है। जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो यहाँ की कौन सी चीज हमारी हो सकती है। इस ड्रामे के लिए सिर्फ एक लाइफ टाइम के लिए ये लोग आए हैं, ये सारी चीजें मिली है, टाइम खत्म हो जाएगा ना, ये सब यहीं छूट के जाना है। उड़ जाएगा हंस अकेला, कभी ये भजन सुनना जरूर। कुमार जी का है, कुमार गंधर्व का है। उड़ जाएगा हंस अकेला, कोई साथ नहीं जा सकता, कोई साथ लेके नहीं जा सकता। तो ये डेल्यूजन में हम रहते हैं ना, तो मोह में फंस जाते हैं, आसक्ति में फंस जाते हैं। ऐसे लगता है कि सारा ना मेरा ही है,
ये पैसे मेरे, ये मेरा घर मेरा है, मेरे वाइफ मेरी है, मेरे बच्चे मेरे है, ये मेरी पोजीशन मेरी है, मेरा गांव मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, टेम्पररी लिया हुआ है, छोड़ के जाना है. If you want to overcome your attachment, which is probably the major source of pain and misery in your life, give some serious thought to what I am about to say. गुरुजी हमें बिल्कुल एक जैसे ना आर्जव कर रहे हैं कि अगर आपको आसक्ति से उभरना है, उसको दूर हटाना है और आपके लाइफ से ये दुख दर्द परेशानी दूर करनी है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सीरियसली ध्यान दे के सुनिए और उसको इम्प्लीमेंट यानी लागू करने की कोशिश कीजिए. एवरीबडी एंड एवरीथिंग यू थिंक यू possess and are so attached to actually do not belong to you at all. कितना भी ये मानने में दुख हो कि मेरा बच्चा भी मेरा नहीं है, नहीं है. यहाँ पे भी खलील जिब्रान को पढ़िए, वो बोलता है कि किड्स ओनली कम थ्रू यू, दे डोंट बिलोंग टू यू. सोल हमारा क्रिएशन नहीं है, दिया है जेनेटिकली, माँ बाप जीन से एक होके एक शरीर का गोला दिया है, उसमें जो आत्मा आती है वो हमने नहीं बनाई है. जो इंसान के अंदर वो आत्मा है वो हमने नहीं बनाई है, नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी हमारा नहीं है. Every speck of creation belongs to the creator or the creative force in the universe. सारा कुछ परमेश्वर का है. थोड़े दिनों के लिए खेलने के लिए दिया है, आनंद लो, खेलो, मजे लो, लेकिन एक दिन ये छूट जाएगा, या जब कि वो छूट रहा है तब ये समझ वापस आने दो. क्योंकि मेरे ख्याल से मैं इंसान हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम फंस जाते हैं, आसक्ति में फंस जाते हैं. थोड़ा तो दुख होगा, लेकिन तब आने दो कि नहीं, टाइम आ गया है बाय बाय करने का, टाइम आ गया है छोड़ने का, टाइम आ गया है. उतना भी अगर हम समझदारी से कर ले, परेशानी अननेसेसरीली नहीं बढ़ेगी. एक्सपायरी डेट सबके ऊपर लगी है, मेरे ऊपर भी लगी है, दिखती नहीं है. इसीलिए शायद हम सोचते हैं और जीऊंगा, पता नहीं कल का दिन भी हम देखे या ना देखे. कितने कॉन्फिडेंस से हम सो जाते हैं कि नहीं, मैं तो कल से वापस. तो जितना ये फनी लगता है आपको सुनने में, उतना ही फनी ये है. ये सारा कुछ हमें थोड़े दिन के लिए खेलने के लिए दिया है. वी आर जस्ट ट्रस्टीज and a trustee can never get possessive about what is merely in its custodial charge. तो हम अपना है ऐसे हम कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा है ही नहीं, वो थोड़े दिन के लिए दिया हुआ है. It's like a bank considering itself the owner of all that lies in the safe deposit vaults. ये फनी लगता है ना कि बैंकर जो कैशियर है वो सोचे कि जो कैश वो गिन रहा है वो उसका है. वो कभी नहीं सोचता है. इनफैक्ट द मोस्ट इतना कैश हाथ से जाता है, लेकिन उसको कभी ऐसे नहीं होता कि ये मेरा है. उसी तरह से हमें कितना भी पैसा आए वो एंजॉय करो, सदुपयोग करो, लेकिन अगर वो नहीं रहे तो वो भी ना, वहां पे भी आपको संभालना आना चाहिए. सो गो अहेड एंड लव टू डेथ एवरीबडी एंड एंजॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन योर लाइफ, बट डू नॉट फॉर अ मोमेंट बिलीव एनी really belongs to you, not even our body. जब तक है enjoy, नहीं रहेगी कोई बात नहीं. ऐसे ही वैसे भी हमारी थी ही नहीं ना, तो जो हमारी थी नहीं है उसके खोने का क्या दुख, उसके ना होने का क्या दुख. शायद ये बात बचने में या फिर इम्प्लीमेंट होने में थोड़ी देर लगे, लेकिन फिर भी जब भी कोई दुख हो, ये बातें सर में आने दो, ये दिमाग में आने दो. ये मैं खुद करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ मेरा सीक्रेट, कि ऐसे 4-6 महीने पहले ही मैंने बहुत बड़ा एक इंसिडेंट झेला है, और तब यही बात बार बार मैंने मन में लाई है कि जो मेरा नहीं था, शायद किसी ने भेजा ही था, मुझे मैसेज भी भेजा था, शायद केटी आंटी ने भेजा था. आर यू देयर केटी?
she said, Seema, when I lost my husband, this is what my Masi sent me, but I did not like it at that time. But now it makes sense. और वही मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, जो भगवान का था वो भगवान ने ले लिया, आप उसका दुख मत करो, वो पहले से आपका था ही नहीं, वो जिसका था उसको पहुंच गया. That helped me to recollect myself, to hold myself. और तब से आज तक ये बात जब भी आता है कोई दुख, ये बात मेरे दिमाग में इमीडिएटली आ जाती है कि मेरा था ही नहीं, जिसका था उसके पास है, सुरक्षित है. जितने टाइम मेरे पास था मैंने एंजॉय किया, अब देने का समय आ गया था तो लौटा दिया. जैसे पड़ोस से कुछ कटोरी वटोरी आती है ना कभी किसी कारणवश, तो वापस देनी पड़ती है, आज नहीं तो कल, वैसे ही है. सो एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट. आज का दिन हमारा है, उसको अच्छे से एंजॉय करो. ये फिक्र मत करो कि ये कल रहेगा या ना रहेगा, उसमें चिंता में अगर पूरा लाइफ में पूरा मौका ही आप खराब कर दोगे. वो जब जाना है वो जाएगा, आज है ना, आज है तो बस एंजॉय करो. कल की वैसे भी हमें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए. लास्ट, द रोड ब्लॉक. ये लास्ट है इस चैप्टर में. द रोड ब्लॉक यानी जहां पे डेड एंड आ जाता है, जहां पे रास्ता खत्म होता हुआ दिखाई देता है. On the path of your soul's journey, you are likely to encounter one particular kind of roadblock that will halt, delay, or frustrate your progress and growth. That particular hurdle is called ego, or better understood as the personality self. यहाँ पे आके आपकी जो स्पिरिचुअल प्रगति है या फिर आपकी ना एज ए ह्यूमन प्रगति है, वो एक स्क्रीचिंग हॉल्ट पे आ जाती है, आगे ही नहीं बढ़ पाती है. और वो रोड ब्लॉक है ईगो. ईगो यानी अपनी पर्सनालिटी. ईगो इज नॉट अ ड्रेडेड वर्ड एज वन वुड टेंड टू बिलीव. यानी इतना खतरनाक उसमें से आप अर्थ न लो, अहंकार ये वो. पहले ईगो क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं. इट्स हाउ यू अंडरस्टैंड एंड हैंडल योर पर्सनालिटी. It a stumbling block. आप जैसे हो एक इंसान के रूप में, एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी, उसको आप बाकी लोगों के साथ किस तरह से मैच करते हो, वो बात है यहाँ पे गुरुजी बताना चाह रहे हैं. Arrogance can come in many forms and so subtle that you will be shocked if you are called arrogant. कभी कभी ये एरोगेंस इतने धीरे से हमारे अंदर आता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि एरोगेंट हो गए हम लोग. एनीथिंग कैन ब्रिंग एरोगेंस. प्लीज बी वेरी वेरी ना अटेंटिव व्हेन इट कम्स टू ईगो. वो स्टेल्थ बॉम्बर जैसा ही है, इतना छुप के आता है, दूसरों को दिखता है. जेलस ईगो कम से कम दूसरों को दिख जाता है, लेकिन हमें नहीं पता चलता. तो एरोगेंस किस किस चीज का हो सकता है? वेल्थ का बहुत होता है, पावर, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, रॉ टैलेंट एंड प्लेन स्टुपिडिटी. मूर्ख लोगों को, इनफैक्ट मूर्ख लोगों को ही किसी न किसी चीज का अहंकार होता है. दीज आर द मेजर फैक्टर. चीजों के मालिक है, जैसे पैसा, पावर, सत्ता, सौंदर्य, टैलेंट. अगर आपके दिमाग में ये चढ़ गया और आपको एटीट्यूड आ गया कि आई थिंक आई एम द बेस्ट और आई थिंक आई ओन एवरीथिंग, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ ईगो या एरोगेंस. टू माई माइंड द यूनिवर्स एंजॉय nothing more than to see the most arrogant people get crushed under the weight of their own ego with their noses. अगर आप इतना उड़ने की कोशिश करोगे उतना ही फॉल भयानक होगा. और यूनिवर्स, गुरुजी बोलते यूनिवर्स एंजॉयज पुटिंग डाउन एरोगेंट एंड इगोइस्टिक पीपल रूथलेसली. किस चीज का अहंकार है? पैसे का? बाहर देखो, शायद आपसे ज्यादा वेल्दी नजर आएंगे. बुद्धि का? आपसे कई लोग बुद्धिमान हैं, शेर को सवा शेर मिल जाते हैं यहाँ पे दुनिया में. तो अहंकार, जिस दिन अहंकार आएगा उस दिन आपके आंखों के ऊपर पट्टी लग जाएगी. फिर आप इतना होने लगोगे कि जब
पतंग कटती है ना तो किस तरह से, the reason why you have no business pumping up your ego is that the soul that we all are equally talented, equally intelligent, equally having equal abilities. It is only when we take a human birth that we decide that restrictions we will place on ourselves through different veils on our consciousness. So as a soul, सारे souls एक जैसे हैं, homogeneous है, समान है, लेकिन जब हम एक इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, अपने कैरेक्टर को सूट होता हुआ पर्सनालिटी लेते हैं, कैरेक्टर को सूट होने वाला लाइफ लेते हैं. जैसे आप मूवी में देखते हो कि कभी कभी बेगर का रोल आ जाता है, कभी कभी राजा का रोल आ जाता है, कभी कभी नौकर का रोल आ जाता है, कभी कभी हीरो का रोल आ जाता है, कभी कभी कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल आ जाता है. अब आप रोल के हिसाब से पर्सनालिटी लेते हो, इजंट इट? तो जब संजीव कपूर ने शोले में रोल लिया था ठाकुर का, हाथ नहीं थे उसके. क्या इसका मतलब ये था कि संजीव कपूर का हाथ नहीं थे, या फिर उन्होंने हाथ काट डाले उस रोल के लिए? नहीं, he just had to pose that he doesn't have hands, and he went into that role, he prepared that role by practicing how one person would behave without hands. So we all are in roles here, and that's why we have taken restrictions on our personality. तो आपको ब्यूटी का अगर गुरूर है तो ये ना समझना कि कोई बदसूरत या फिर कोई इतना तो उन्होंने बस इस लाइफ के लिए वो रोल लिया है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, उनके अंदर का सोल आपके जितना ही ब्यूटीफुल है. सेम चीज अप्लाइज टू पावर, इंटेलिजेंस, टैलेंट. ये बस रोल की बात है. मैंने ये वाला रोल ले लिया है, उसके लिए सूटेबल पर्सनालिटी ले ली है. आपका वो वाला रोल है, आपने उसके लिए सूटेबल पर्सनालिटी ले ली है. तो अगर मुझे एरोगेंस आ गया तो फायदा क्या? क्योंकि ये सिर्फ रोल के लिए है, नहीं तो मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है. आप भी मेरे ही जितने खूबसूरत, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, या मैं आपके जितनी खूबसूरत, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट हूँ. तो जो लोग इस दुनिया को देख के भ्रमित हो जाते हैं, या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड एरोगेंस आ जाता है, या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या डिप्रेशन आ जाता है. दोनों के लिए ही ये गुरुजी का एडवाइस बहुत लागू होता है. थिंक एज अ सोल, and as a soul you are equal to everyone. So don't feel low, neither feel too high. क्योंकि हाई कहाँ से फील करोगे जब सब एक जैसे ही हैं, और लो भी फील करने की कोई वजह नहीं है क्योंकि हम सभी एक जैसे हैं. ये दुनिया की माया है ने, द ड्रामा ऑफ इट गेट्स ऑन अस, वो हमें भ्रमित कर देता है. सो भ्रम से बाहर निकलिए. हम सभी अंदर इक्वल है, बाहर रोल के हिसाब से है, और वो रोल टेम्पररी है. कुछ भी यहाँ से so it's not that other souls are less endowed than you are, या less able than you are, but in this lifetime they have chosen to restrict their natural abilities to in accordance with destiny. They are like good actors, are playing it down. As far as wealth is concerned, naked you come and naked will you go. किस चीज का अहंकार? And between the two states of nakedness, everything is ephemeral and transitory. इतना बड़ा सेंटेंस गुरुजी ने यहाँ पे बोला है. नंगे पैदा होते हैं, नंगे ही जाएंगे, और इन बीच में जो भी है वो क्षणिक है. किसी भी चीज एंड हो सकता है. अपने पैर जमीन पे रखिए. बी हम्बल, बी ग्रेटफुल, बी पोलाइट. Treat others equally even if they apparently doesn't look equal to you. They are inside. So ground yourself. Remain grounded. जमीन पे पैर रहे. किस चीज का गुरूर कर? Wealth can vanish in a flash.
ये दुनिया अभी देख ही रहे हैं, देख कितने लोगों की वेल्थ कम ज्यादा हो जाएगी इस दौरान, इस सो आज है कल नहीं है। हर चीज यहाँ की टेम्पररी है, क्षणिक है, उसका आनंद लीजिए। और परमेश्वर की कृपा है अगर आपके ऊपर तो धन्यवाद दीजिए, पांव जमीन पे रहने दीजिए। बॉटम लाइन, हैव इंडिविजुअलिटी टू प्रिवेल, यानी जो सेल्फ एस्टीम है उसको खिलने दो, एंड योर सेल्फ एस्टीम टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट। सो ईगो और सेल्फ एस्टीम में यहाँ पे भी मैं थोड़ा एलाबोरेट करूंगी, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। सेल्फ एस्टीम इज नोइंग एग्जैक्टली हु यू आर एंड नॉट गेट फ्लैटर्ड बाय अदर्स और बाय लाइक ना, और खुद को भी इतना चढ़ाता नहीं है सेल्फ एस्टीम, इट नोज इट्स लेवल, रिस्पेक्ट ऑल द टाइम। सेल्फ एस्टीम में 3 बातें मैं भी बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी रिवाइज करना चाहूंगी। सेल्फ लव, लव योर सेल्फ नो मैटर वॉट, अदर्स मे और मे नॉट लव यू, एटलीस्ट वंस इन अ डे सिंसियर to your own eyes and very lovingly say that I love this girl or I love this guy. They have a lot of, I have a lot of good in me, so I love my. You deserve to be loved by yourself, if not by others. दूसरी चीज आती है सेल्फ रिस्पेक्ट। Absolutely, you have to protect your self respect. No compromise on that. You can't allow others to trample over you, to humiliate you, to lower you. You have to defend yourself. And third thing आती है self protection. हर बार कोई नहीं आएगा बचाने के लिए. Stand for yourself, for your self esteem, for your self protection. And that's what makes self esteem. It's not ego. It's little different. Okay, so ego makes you tyrannical. Beware. You are marked for humiliation. अगर आप उड़ रहे हैं तो भगवान जानता है हमारे पंख कैसे काटने हैं। हम एक्चुअली में बताया ना, हम इतने से हैं, बिल्कुल एक कण की तरह रेती के, और इतनी बड़ी पावर के सामने हम खड़े हैं, क्यों एरोगेंस आना चाहिए। जिन्होंने भी अमृत पढ़ी है वहां पे या कहीं पे तो गुरुजी ने मेंशन किया है कि आपको प्राउड नहीं लगता कि बाबा जी जैसे आपके गुरु है या इतने सारे अचीवमेंट्स आपके स्पिरिचुअल है। कहते हैं गुरुजी ने कहा था कि किस चीज का प्राउड, जब मेरे गुरुदेव जो मृत्युंजय संत है महाअवतार बाबा जी के पास क्या नहीं है, कौन सी सिद्धि नहीं है, अगर वो इंसान एक पैरागॉन स्लीपर, एक लॉइन क्लॉथ, एक डंडा, इसी में खुश है और इतना नॉर्मल रहता है, तो मैं कहाँ से एरोगेंस मेरे में आ सकता है। इसीलिए भी गुरु का लाइफ में होना बहुत जरूरी है। गुरु इज द ग्राउंडिंग फैक्टर। उनके सामने तो कम से कम हम झुक जाते हैं, तो कोई होना चाहिए जो ये सर झुका सके किसी के आगे। ये तो हवा में ही बना रहता है। तो इस तरह से गुरुजी ने अमृत में हमें बताया है कि किस तरह से हमारे अंदर का ये बदलाव बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ को पीसफुल, हैप्पी, कंटेंटेड, मीनिंगफुल एंड ना ऑफ ग्रोथ बनाने के लिए। आई डोंट थिंक रिविजन इज रिक्वायर्ड, बट जस्ट बिफोर आई वाइंड अप, 3 चीज़ें जो दुख लाती है, 3 नहीं बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई है। आपका गुस्सा काबू रखिए, आपके जबान के ऊपर शक्कर रखिए, मिठास रखिए, आपके लोभ के ऊपर काबू रखिए, मेहनत से कमाइए, दूसरों को धोखा देके नहीं, और आपके एरोगेंस, आपके एटीट्यूड को काबू रखिए। ये एटीट्यूड दूसरों को दुख दे जाता है जाने अनजाने आपके एरोगेंस में। आपकी जेलसी को हैंडल करना सीखिए, आपके आसक्ति को हैंडल करना सीखिए, और लास्टली जो गुरुजी ने बताया है वो है ईगो को कैसे हैंडल करना है। अगर ये चीज़ें हम हैंडल कर पाए तो फिनोमिनल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो होगी ही। हमारे हाथ से मिनिमम या नो नेगेटिव कर्मा होंगे, कोई भी गलत काम होगा ही नहीं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से गलत काम हो जाते हैं। और तीसरा, इनर पीस, हैप्पीनेस और जॉय बना रहेगा। सो सी यू on Tuesday. The topic will be
हाउ टू बी इन दिस वर्ल्ड एंड नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी यहाँ पे अगर आए हैं हम पृथ्वी पे तो किस तरह से जीना है, इस दुनिया का नहीं बन जाना है, दुनिया का नहीं बन जाना है, ट्रांजिएंट है, टूरिस्ट है, तो किस तरह से हमें यहाँ पे व्यवहार जीना है हम ट्यूसडे को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। मे ऑल बी ब्लेस्ड विथ peace, stay healthy and stay connected. If you have any queries, any doubts, please message them. I'll try to get them answered by Guruji. And keep enjoying reading Amrit. I am just listening, but you should read it little bit at least every day to keep up with the knowledge. हमारे ब्रेन का यही तो कहते नेगेटिव है, इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक नहीं रहती है, इसीलिए इंफॉर्मेशन यहाँ डालनी चाहिए दिल में। अगर आप दिल से सुन रहे हैं तो दिल एब्जॉर्ब कर लेगा, दिमाग से सुन रहे हैं तो वो 15-20 मिनट में हाफ हो जाएगा इंफॉर्मेशन और वीक में खत्म, याद नहीं रहेगी। सो मैं दिल से बात कर रही हूँ, आप दिल से स्वीकार कीजिए ताकि ये नॉलेज यहाँ पे रहे और आपको बार अपने गुरु की बात